बहुत स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੀਜਨਿੰਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁਭਚਿੰਤਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਪਟਵਾਰੀ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਗੋ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 7 ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 15 ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਹਦੇ ਫਰੇਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਆਰੀਜ਼ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਰੀਜਨਿੰਗ ਐਂਡ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੋ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ ਜਿਸ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨਸ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਥਿਓਰੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਡਾਊਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਯੂ ਪੀਪਲ ਕੈਨ ਆਸਕ ਮੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਸਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੈਂਸ਼ੂਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਦੈਟ ਕਿ ਮੈਂਸ਼ੂਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ ਫਸਟ ਦੇ ਦਿਓ ਸਰ। ਮੈਂਸ਼ੂਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਮੀਨਸ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ, ਮੈਂਸ਼ੂਰੇਸ਼ਨ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਹੈ, ਸਕੁਆਇਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਯੂ ਪੀਪਲ ਕੈਨ ਆਸਕ ਅਸ ਅ ਕੁਐਸਚਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੰਡੇ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪੇਜ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਅਟੈਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰੀਜਨਿੰਗ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਪਾਰਟ ਹੋਏਗਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹ ਟਵਿਸਟ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਟਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਕਨਸੈਪਟ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦਾ। ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਰਾ ਹੁਣ ਸੋਚ ਲਓ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਪੋਜ਼ ਸਿੰਬਲ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਰਾ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਹੈ, ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਹੈ, ਇਦਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਹੈ, ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗਾ 4 ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗਾ 5 ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗਾ 6 ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੈ ਸਭ ਦੇ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰ ਓਪਨ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰ ਓਪਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਗਰ ਇੱਥੋਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਤੋਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਸਮਝ ਗਏ? ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ 1 ਲਿਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ 2 ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 3 ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ 4। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ 4 ਤੇ ਕਨਸੈਪਟ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਦਾ ਸਹੀ ਤੱਥ ਹੋਏਗਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰੂ ਹੈ। ਮਤਲਬ 4 ਹੈ ਉਹ 1 ਤੋਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡਾ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਸਿਰਫ ਵੱਡਾ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੱਗੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰਫ ਔਰ 3 ਅਤੇ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੈਨ ਕਰ ਲਓ ਇਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੇ ਨਾ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਓ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਥੇ 1 ਹੈ, ਇੱਥੇ 2 ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ 1 ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਲੈਸ ਦੈਨ 4 ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 1 ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ 4 ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਟਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਅਗਰ 3 ਤੇ 4 ਦੇ ਬਿਟਵੀਨ ਹੈ, ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ 4 ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4 ਹੋਏਗਾ। ਸਮਝ ਰਹੇ? ਜਿੱਧਰ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਾ ਉਸ ਤਰਫ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੱਖ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ 3 ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 4 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ 3 ਤੇ 2 ਦੀ, ਤਾਂ 3 ਤੇ 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਕਾ ਹੈ ਵੀ 2 100% ਇੱਕਦਮ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਬਰਾਬਰ ਵਾਲਾ ਕਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ 2 3 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ 4 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਕੌਣ ਵੱਡਾ ਆ ਗਿਆ? 2 ਵੱਡਾ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ 2 ਤੋਂ 1 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 2 ਤੋਂ 1 ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ 1 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 4 ਤਾਂ 2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ 1 ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਛੋਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 1 ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ ਨਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਤਾਂ ਸੋ ਦੈਟ ਇਹਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਵਾਲ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰਿਕ ਨੰਬਰ 4, ਜਰਾ ਟ੍ਰਿਕ ਨੰਬਰ 4 ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਲਓ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪਾ ਲਓ, ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਸਕੈਨ ਕਰ ਲਓ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖ ਲਓ 2 ਦੋਸਤ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਿੜ ਰਹੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਿਕ ਮਤਭੇਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਟੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜੇਗੀ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਨਕਲੂਜਨ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ।
ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਰਾ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਚਲਦੀ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ, ਚਾਹੇ ਇਨ ਚਲਦੀ, ਇਹ 4 ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਓ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਇਕੁਅਲਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਜੋ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਨਕਲੂਜਨ ਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਨਕਲੂਜਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈ, मैं इहनूं सुदृढ़ तरीके नाल थोड़ा जिहा लिख लेना ताकि मैनूं बेहतर होएगा कि तुहानूं मैं इहदा सैटिस्फैक्शन आंसर दे सकां। देखो जी, मैं इत्थे लिखांगा भी D ग्रेटर दैन इज इक्वल टू M है। फिर ये मैनूं कह रहा है कि D ग्रेटर दैन इज इक्वल टू की है, D ग्रेटर दैन इज इक्वल टू की है, R है। मैं इत्थे R लिख लांगा, मैनूं उल्टा लिखना पएगा पर मैं लिखांगा जरूर क्योंकि मैं मेरे स्टेटमेंट के मुताबिक चलांगा। हुण गल कह रहा है भी D है वो पक्की गल, किस तो D तो वड्डा कौन है, D तो वड्डा कौन है, Z है। चाहे तुसीं जिधर मर्जी लिख लो कोई फर्क नहीं पएगा। हुण गल आउंदी R दी, बई R वड्डा है किस नालों, C नालों। आ मेरे कोल एक स्टेटमेंट बन गया। हुण सवाल मेरा कहंदा है भी Z है जिहड़ा ग्रेटर दैन किस तो है, C तो है, तो मैं इसनूं इस तरीके नाल भी लिख सकदा है ना। मैं थल्ले आंसरां ते नहीं जांदा, जरा मैं इस तरीके नाल लिख सकदा, मैं इसनूं इत्थे लिखांगा, ठीक है गुरु जी। जरा समझो, इत्थे मैं लिखांगा कि C R हो गया, फिर मैं इत्थे लिखांगा भी R लैस देन टू D है और D तो वड्डा कौन है, Z है। हुण देखो जी, सब दे सिंबल किस वाल है, Z वाल है, तो एक नंबर चीज़ बिल्कुल 7% सच होएगी। जे तुहानूं कहा जाए कि C, देखो हुण तुहानूं पेपर वाला अगर मैं एग्जामिनर हुंदा तो मैं तुहानूं इस तरीके नाल फसाउणा सीगा भी दसो, बिल्कुल गलत हुंदा। हुण इह कहंदा भी C ग्रेटर मतलब C तो वड्डा Z है, तो बिल्कुल सच है जी। क्यों है, क्योंकि सब दे मूँह किहदे वाल खुले ने, Z वाल खुले ने, तो इस करके तुहाडा पहला 101% सच गल होएगी। प्यारे दोस्तों, दूजा पुछदा है भी M है ग्रेटर दैन इज इक्वल टू A हो C होएगा। हुण देखो तुसीं जरा यही पक्ष तुसीं मैं समझाउणा चाह रहा है सारे मेरे विद्वान मित्रां नूं, इहदा मूँह ते इहदा मूँह आमने सामने भिड़ गए कि नहीं भिड़ गए। जो टक्करां हो गईयां तो इहदा नतीजा निकलना पॉसीबल नहीं है, इस करके पहला सही होएगा। तो हुण तुसीं देखो हेठां कनकलूजन च की है, दूजा फाल्स है तो पहला ट्रू है। मेरी गल समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो दोस्तों? मेरा कंसैप्ट इन्ना बेहतर तरीके नाल क्लीयर है तो मैं उही चीज़ तुहाडे नाल सांझी करांगा कि तुसीं कदे भी इसनूं गलत कर ही नहीं सकदे हो। मैं इस करके थोड़े ना झूठा वादा नहीं करता कि रीजनिंग और मैथमैटिक्स दे विचों मैं सिंगल चीज़ नहीं कट्टण देवांगा। हुण तुसीं अगर उसनूं नहीं कर पाओगे तो फिर तुहाडी गलती होएगी। चलो जी, हुण एक सवाल होर है, जरा यही तो सवाल आई थिंक मैनूं लग, हाँ एक सवाल होर है, मैनूं थोड़ी जी पिक्चर नूं वड्डी कर लैण दो ताकि तुसीं सारे जणे समझ सकोगे। चलो जी, मैनूं थोड़ा जिहा होर फैला देण दो वड्डा करके, मैनूं स्क्रीन ते पूरा जूम आ लो जी, पूरा करता रज के, ठीक है। हुण क्लीयर, जरा आपां इहदे आंसर लुको दिंदे आ लो जी। हुण आपां करदे हैं, इत्थे मैं लिखिया है N है और इत्थे मैं लिखिया है N लैस दैन इज इक्वल टू I है। ये फिर कहंदा भी I तो वड्डा कौन है, Q है, तो Q लैस दैन इज इक्वल टू S आ बनाता जी मैं। हुण ये कहंदा भी S ग्रेटर दैन इज इक्वल टू N है, S ग्रेटर दैन इज इक्वल टू N है, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट गलत होएगा। बई क्यों होएगा? अगर गुरु जी ये चीज़ सारे बच्चे ख्याल रखो, मेरी गल दा गौर रखना इस चीज़ का। अगर इत्थे इस तरीके का सिंबल हुंदा, इस तरीके का निशान हुंदा, तो आप कह सकते कि पहली गल बिल्कुल सच है। इट मीनस ये साडे कोले अकॉर्डिंग टू आवर कनकलूजन नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आप ये गल बिल्कुल पूर्ण तौर पर यकीनी तौर पर कह सकते हैं कि जो चीज़ सानू इत्थे कही जा रही भी N, देखो N तो वड्डा कौन है या बराबर A वाला है I तो 7% कौन वड्डा है, Q है, मतलब I का रोल खत्म हो गया है। हुण Q तो वड्डा या बराबर कौन हो सकता है, S। तो जे मैं N की गल करांगा, N तो I तो ही छोटा है, मतलब कि Q तो भी छोटा हर 7% है, तो वड्डा तो हो ही नहीं सकता। तो पहला स्टेटमेंट तो 7% एकदम ठीक है, क्लीयर है, कोई दिक्कत नहीं है। दूजे स्टेटमेंट चो कहता है कि S वड्डा होएगा I तो। देखो जी, S वड्डा होएगा I तो बिल्कुल इस स्टेटमेंट की बिहाफ ते भी मैं तुहानूं कह सकदा है कि गल मेरी किते न किते पूर्ण तौर पर एकदम ये चीज़ां भिड़नगियां, ठीक है। ये चीज़ां की होणगियां थोड़ियां भिड़नगियां। हालांकि थोड़ा जिहा इत्थे मैं तुहानूं दसना चाहांगा कि कनकलूजन तो लैके बच्चा परेशान होया होएगा, तो ये चीज़ां मैं तुहानूं क्लीयर करा दिना है, ठीक है। समझ पाए सब बच्चे, सबनूं समझ आ गया ना, ठीक है जी। दोनों चीज़ां ये देखो, ये कन्फ्यूजन होना स्वाभाविक गल इस करके हो गया कि ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ है जो ये चीज़ इत्थे शायद तक साडे तो ही गलत होगी। ये चीज़ इदां होनी चाहिए सी, ठीक है, इदां होनी चाहिए सी ना, अकॉर्डिंग टू दिस तो अकॉर्डिंग टू दिस होनी चाहिए सी। इस करके इसने इत्थे दिता है, तो आपां जो चीज़ ये दिती है इस बिहाफ ते तो ये बिल्कुल सही है,
इस बिहाव ते तो बिल्कुल ही सही है, लेकिन अगर इत्थे आ चीज़ आउंदी तो तदे तुसी फाल्स कह सकते सी बिल्कुल है। तो दूजी गल की पूछी सी उन्हें कि आई तो वड्डा एस है, तो दूजी गल बिल्कुल 7% सही है, तो यदा ऑप्शन नंबर 2 बनेगा, न कि पहला बनेगा। क्लियर है ना, 2 का मतलब ये हो गया कि थोड़े को ट्रू टूजा सही है। क्लियर है, चलो जी गां वाले ते आ जाओ। गां वाले ते आपां करते हैं, तो इसने लिखा सीगा कि u बराबर t है तो t तो वड्डा n है, और फिर गल आ रही है कि बई इथों आ करके इदां आ जाएगा। हुण देखो भी s ग्रेटर दैन किस तो है, n तो डेफिनेटली आपां गल कह सकते हैं कि s ग्रेटर दैन n तो हो सकता है कि नहीं हो सकता, तुसीं खुद आंसर दो। हुण s वड्डा है किस तो, t तो। देखो t की गल करते हैं इत्थे है, हुण टी तो वड्डा आपां नहीं कह सकते बई, टी तो वड्डा नहीं कह सकते क्योंकि टी के बराबर भी हो सकता है, लेकिन साडे कोले अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ट्रू हो सकता है, सैकेंड साडे कोले गलत होएगा, तो ऑप्शन ए आ जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, सबनों समझ आ गया, सारिਆਂ ਨੂੰ समझ आया कि नहीं आया, कंसैप्ट ਤੇ बिल्कुल पकड़ होनी लाजमी है। ठीक है, थोड़ा ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ देयर इज नो एनी प्रोविजन टू मेक दिस रॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, चलिए एक सवाल किसी विद्वान मित्र ने होर पाया, इस मित्र की गल ਨੂੰ भी ਆਪਾਂ मद्देनजर रखते हुए जे ग्रेटर दैन क्यू है और क्यू ग्रेटर दैन इज इक्वल एल है, एल बराबर एफ आएगा, तो थोड़े को एफ ग्रेटर दैन डी आएगा। हुण देखो जरा की कह रहा है कि भी जे ग्रेटर दैन इज इक्वल टू एफ आएगा, जे इत्थे है तो एफ इत्थे है, तो एफ के बराबर आ सकता है। हुण जे ते दोनों बराबर नहीं हो सकते, इट मीनस पहली गल तो बिल्कुल तुहाडी रॉन्ग है। दूजी गल कहंदा भी क्यू ग्रेटर दैन इज इक्वल टू डी हो सकता है, तो दूजी गल भी बिल्कुल गलत है। मेरी तो दोनों गल्लां बिल्कुल पसंद नहीं है, इस करके मैं तो तुहानूं दोनों चीज़ां ही कहांगे। कहंदा कि बोथ द कंक्लूजन आर करैक्ट, दोनों कंक्लूजन ने इस दे अकॉर्डिंग की कह रहा, करैक्ट कह रहा है। ठीक है, देखो हुण किवें कह रहा, इत्थे तो इहने डी देता, थोड़ा जिहा टाइपिंग मिसप्रिंट है, इत्थे देखो दो बोथ द कंक्लूजन आर करैक्ट देता, बल्कि इनकरैक्ट देना चाहिए सीगा। तो डी दे विच तुहानूं की दिता है कि नीदर फर्स्ट और नॉर ही सैकेंड वैलिड है, भी ना तो पहला सही तो ना ही दूजा सही। मैं तुहानूं कहा ना भी दोनों ही गलत, इट मीनस है डी ऑप्शन बिल्कुल करैक्ट होना चाहिए। ठीक है जी, समझ पाए हो। चलिए उस तो बाद आता है नैक्सट है पॉइंटिंग टू द, एक केदार वाली गल है, तो ये सवाल भी इस तरीके नाल सीगा, जरा मैं इस ते भी एक्सप्लेनेशन करना चाहना है। भी वीना नाम की एक आ देखो वीना है, वीना कौन है, नाम पढ़ते सर मैनू पता लग रहा है कि सी इज ए फीमेल। ठीक है, वीना की कहती है, मैं तुहानूं दस्सिया सी भी इत्थे इज आ गया और इत्थे ऑफ आ गया, ਇਹੋ ਜਿਹੇ सवालों तो बैक चले जाओ, कहने वाले परसन ਨੂੰ मुख रखो। वीना की कहती है, वीना कहती है कि हिज मदर्स ब्रदर, उसकी माँ का भाई, इज द फादर ऑफ माई सन नितिन। की दी गल हो रही है, माई सन नितिन, तो यदा सन आएगा, सन हमेशा माँ प्यो तो हेठां बैठेगा, आ बैठा नितिन यदा सन है। देखो ये कित्थे गल आ रही सी, ऑफ माई सन नितिन, फिर उस तो पहला की आ रहा है ऑफ द फादर, फादर की की गल आ रही है, इस नितिन के फादर की गल आ रही है। आ चक्को जी नितिन का फादर हो गया, इत्थे जिहदा नाम कुछ भी ला दो, महेंद्र प्रपात जो भी ला दो। फिर आ गया इज द ब्रदर, देखो जरा सवाल समझो, जरा इत्थे थोड़े कोले गल खत्म हो जाती, इत्थे वापस तो यही परसन चलिया गया इहदे बारे। कहती वीना कहती है कि हिज मदर, की दी मदर गल हो रही है, इत्थे कोई लड़का है केदार नाम का, उन्होंने कह रही है कि उसकी माँ, ठीक है, कोई केदार नाम का बच्चा है जिहदी मैं गल एक केदार रख लेना है, इहदी माँ है, इहदी माँ नूं मैं इत्थे की करदा, जरा मैं थोड़ा जिहा स्टेटमेंट नूं चेंज कर लवां, क्योंकि मेरे तो एक लाइन ड्रॉप मिसटेक नाल गलत हो गई है, मैं उसनूं दुरुस्त करना चाहांगा। जरा इस नितिन के फादर की गल हो रही सी, तो फादर की माँ के इक्वल बैठेगा, इत्थे बैठेगा, ये इहदा फादर सीगा। ठीक है, हुण गल हो रही सी इत्थे केदार की, तो केदार नूं आपां इत्थे इंज करके बिठा दिंदे हां, और ये गल कह रहे केदार की माँ, तो केदार की माँ होगी। हिज मदर्स ब्रदर इज द फादर ऑफ माई सन, मतलब इहदी माँ का जो भाई है वो मेरे पुत्र का प्यो है, तो मतलब हो गया इहदी माँ है तो इहदा भाई हो गया। तो तुसी सिंपल जी गल समझो भी थोड़ी ये वी नूं तुसी अपनी माँ समझो, महसूस करो भी तुसी अपने आप दे विच नितिन हो, वी कौन है, वी थोड़ी मदर है, तो ये थोड़ा कोई परसन, मतलब इहदा नाम कुछ भी नाम रख देना, थोड़ा फादर है, थोड़े फादर की भैन थोड़ी की लगेगी, थोड़ी भूआ लगेगी, और भूआ का पुत्र थोड़ा की लगेगा, कजन लगेगा। और यही जे मैं गल करना है भी इस केदार दे नाल वीना का किस रिश्ता बनेगा, तो वीना का केदार दे नाल की रिश्ता बनेगा, तो डेफिनेटली है अंग्रेजी भाषा दे विच मामी, भूआ, ताई, चाची नूं आपां आंट दे नाम तो पछाणदे हैं। ठीक है, आपां की कहने आंट कहने हैं, तो आंट कहने हैं, तो डेफिनेटली आंट के बिहाफ से वीना का इस दे नाल की रिश्ता बनेगा, एज ए आपां कह सकते हैं नेफ्यू बनेगा, या की रिश्ता बनेगा तुसी कह दोगे भतीजे का रिश्ता बनेगा, क्योंकि जो रिलेशन से इत्थे नेफ्यू है वही रिलेशन से इत्थे कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ इस तरीके नाल बननी सी जो बिल्कुल सही है।
इस तो बाद आ जाता दूजा क्वेश्चन भी तुसीं खुद सारे जने सॉल्व करके मैंने कमेंट बॉक्स में दसना है, मतलब चैट बॉक्स में दसना है, ठीक है सारे जणियां ने बिल्कुल। और मैं बिल्कुल प्रत्यक्ष चीज देखांगा कि किन्ने बच्चे तुसीं वाकई ही थोड़े टीचर नूं प्यार करदे हो कि साडे लई मेहनत करदा कोई परसन, तो असीं उस गल दा रिप्लाई करना है। देखो जी सब तो गल आउंदी है प्यारी और बड़ी खूबसूरत, अज आपां पाठ करन जा रहे हैं सिलोलिज्म। देखो सिलोजिम्स की है, सिलोलिज्म्स पार्ट एक इहो जिहा है जिसनों आपां बोलचाल दी भाषा च सिलोग कहने हैं। सिलोग एक इहो जिहा मैं कहना चंद्रमुख पार्ट हुंदा है कि जिस दे सवाल सानू बेसिक स्तर तो मैं करावांगा। मेरा हमेशा परपज हुंदा है मैं ग्राउंड लैवल तो उठांगा तो मैं इस तरह ग्राफ के बिहाव से चलांगा और मैं तुहानूं एडवांस लैवल तक के सवाल करावांगा, ठीक है जी। चलो सब तो पहला गल करते हैं सिलोग हुंदा की है। ये कहता भी सिलोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग का, जिसते जनरली 5 तो 6 क्वेश्चन थोनों हर किसी एग्जाम दे विच पूछे जाते हैं और इस दे सॉल्व करने का नज़रिया वैन डायग्राम भी हो सकता है, क्योंकि वैन डायग्राम तरह ही आप इसनों की करते हैं डिजाइन करते हैं। हुण गल आउंदी है कि ये कहता कंसीडर स्टेटमेंट्स बी ऑलवेज ट्रूथ, स्टेटमेंट्स आर यूनीवर्सल ट्रूथ। देखो कुछ चीज़ां होंदियां हैं कि जो बिल्कुल यूनीवर्सल ट्रूथ ते एक्सैप्ट होंदियां, जिसकी मैं देसी दवाई देवांगा थोनों बहुत ही शानदार पुड़ी देवांगा। ये पुड़ी बहुत तकड़ी है, नागमणी दे नाल इस पुड़ी नूं बिल्कुल बनाया गया है थोड़े लिए, और तुसी दुध नाल पानी नाल जिवें मर्जी लै लिओ, थोनों कदे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोरोना तुहाडे लागे नहीं आएगा। ये सवाल खास तौर पर करोना का मतलब हैगा इत्थे कि मैं करोना लिए खैर WHO नूं तो मैं चैलेंज नहीं कर रहा, करोना का मतलब इत्थे अपने सिर्फ और सिर्फ परपज है सवाल का। देखो ये कहता दूजा सवाल है मस्ट अंडरस्टैंड देयर स्टेटमेंट एंड आफ्टर दैट द कंसीडर देयर कंक्लूजन। देखो प्यारे बच्चों 4 चीज़ां समझ लैनियां। सानू एक तो आएगा कि ऑल पेन आर, नो पेन आर एंड सम बुक आर एंड इदां इदां दा करके। इसलिए तुसी समझ लो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आउंदे हैं या तो ऑल दे आउंदे हैं या सानू दूसरे आउणगे नो वाले आउणगे। तीजा स्टेटमेंट आएगा सानू सम वाला आएगा, फिर सानू आएगा कि सम पार्ट है तो सम पार्ट नहीं है। देखो हुण इस चीज़ दे विच मैं गल कह सकदा है कि देखो आ मैं कह सकदा मेरा घर है और एक मैं कह सकदा मेरे ब्रदर का घर है, तो मेरे घर तो मेरे ब्रदर के घर दे थोड़ा थोड़ा हिस्सा जो मैं गल कवां कि मेरे ब्रदर के घर दे मेरा हिस्सा भी है, मैं गल कह सकदा ना। देखो जी मैं गल इसनों इस तरीके नाल भी कह सकदा है कि मेरे ब्रदर के घर दे मेरा भी हिस्सा है, तो मेरा ब्रदर भी कह सकता है कि भाई साहब के घर दे मेरा घर का हिस्सा भी है। तो मतलब ये की है कि ये चीज़ां ये भी कंसैप्ट इंप्लीमेंट हो जाएगा तो यह भी कंसैप्ट लग जाएगा। तो दोनों चीज़ों अपने मुख तौर पर संभाल दे विच रखना है। इस तो बाद आ जाती नैक्सट गल, हुण इन्हां दे कनक्लूजन की गल करते हैं तो कहेगा तुहानूं कहंदा भी कि ऑल बुक आर पेन वाले होणगे, फिर नो बुक आर पेन, इस तरीके के थोनों कनक्लूजन 5 पूछे जाते हैं। पेपर के विच थोनों मेनली 7 तरीके के सवाल दिते जाते हैं जिन्हां दे कनक्लूजन किवें पुछदे हैं। या तो पूछेगा ऑल वाला, जरा गौर कर लो, या पूछेगा नो वाला, ठीक है, या पूछेगा सम वाला, या थोनों पूछेगा कि सम नॉट वाला, या पूछेगा ऑल पॉसिबिलिटी वाला, फिर ये नॉट पॉसिबिलिटी वाला, और फिर पूछेगा एटलीस्ट वाला। जिहड़ियां आ 3 चीज़ां आ, ये 3 चीज़ां खास तौर पर यह पूछिया जांदियां है। थोनों मैं दस दिना है कि बैंकिंग एग्जाम दे विच पूछिया जांदियां, बैंकिंग एग्जाम्स दे विच पूछिया जांदियां है, और खास तौर पर मैं गल करां तो PO स्टैंडर्ड के एग्जाम दे विच आउंदियां है, और क्लैरिकल दे विच भी किसी हद तक कोई एक दा क्वेश्चन आ जाए तो जरूरी है, लेकिन पंजाब गौरमेंट के एग्जाम्स दे विच इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी आपां करांगे। हुण ये कहंदा भी 3 पार्टां दे विच आपां सिलोग नूं ट्रिकी बेस ते लवांगे। पॉजिटिव नूं हमेशा आपां की लेना है 100% लेना है, और नैगेटिव नूं हमेशा आपां 0% कंसीडर करना है। तो ये कहंदा पॉसिबली 50% हो सकता है तो 50% नहीं हो सकता, जो चीज़ हो सकती है तो नहीं भी हो सकती उसनूं आपां ईदर दे विच ले लांगे। हुण जरा मैं सवालों का सिलसिला शुरू करने तो पहला मैं थोनों लैके चलदा है पहली ट्रिक वल। पहली पुड़ी थोड़े सामने खोल दिना मैं कि इन्हें पूछा है कि ऑल पेन आर कॉपी, दूसरा पूछेगा कि ऑल कॉपी आर पेंसिल, फिर पूछेगा तुहानू ऑल पेंसिल आर इन्हें पूछना है इंक, फिर इन्हें पूछना है कि ऑल इंक आर जिमें आप गल कर लीए कुछ भी लाइक मैं गल कर लेना है कि लिखा मैं हो जा जिस करके कि थोनू चलो मैं पेज लिख लेना है। आ लो जी, चलो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे जने समझ पा रहे इत्थों तक, ठीक है। मैं इस प्रक्रिया को लैके थोड़ा जिहा गांह तुरांगा, मैं इस तरीके नाल तुरांगा कि ऑल दी कंडीशन है। ट्रिक की कहती है कि तुसीं इस चीज़ को फॉलो करना है। सब तो पहला मैं चीज़ लई है सारे पेन, ये पेन है,
ਸਾਰੇ ਪੈਨ ਕੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੈਨ ਹੁਣ ਕਾਪੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਾਪੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੈਨ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਪੈਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਵਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਾ ਤੋ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪੀ ਫॉर ਪਟਿਆਲਾ ਹੈ, ਬਟ ਸਾਰੇ ਪਟਿਆਲੇ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮਝੋ, ਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗਾਂ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸਲ ਸੋਚੋ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣਾਤਾ, ਆ ਲਓ ਜੀ ਇਹਨੂੰ PN ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਮੈਂ। PN ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੈਨਸਲ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਪੈਨਸਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਗਾਂ ਵੱਧਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਨਸਲਾਂ ਇੰਕ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਆ ਲਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਨਸਲਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਈਆਂ, IN ਕੀ ਇੰਕ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਇੰਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਪੇਜਸ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਕੀ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਪੇਜਸ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਪੇਜਸ ਬਣ ਗਈਆਂ।